Okay. So I'm going to record it and I will share the recording with you and you can share it with the students. Now, the first thing which you are supposed to do, the company given to you will go through the background of the company. When the company was formed, what is the business of the company, what is the size of the company, it is at local level, it is at national level, international level, what are the goods and services in which it is dealing, how old is the company, all these things, the background of the company, who are the promoters of the company, who are the managers of the company, the big boss CEOs, and say, suppose some company is owned by Tatas or Birlas or Mahindras or Ambanis. So that name itself is a very good confidence about the success of the company. So that you have to do the research about the background of the company. Background is very important. Sir, we can go through the history of that company, how it History, has been I, since the I, I will past, not say history, even the present can be the thing. Suppose a how company it is going, started by how it is X. going from the Uh, past since how yeah. it started. So you have to talk about the company. You should be knowing. Suppose you are investing into Tata Motors. Suppose. So if you are then Tata Motors, which brands they are producing? They are producing car or truck also or tractor also. I know Tata Motors, but I do not know whether it is producing bus or not. You should be knowing that Tata Motors is producing bus also, truck also, car also, tractor. I don't know. Whatever it is, it can be your. It is your research. Tata Motors is dealing is only in auto parts, or they are outsourcing the concept of auto parts. They are taking auto parts from outside, and they are. So you have to see the business model. Business model. How there are some companies which are suppose Hindustan Unilever. Hindustan Unilever do not produce anything. They take the things from XYZ company, they put their brand, they sell it. This is the business model. Now, so you should be knowing Hindustan Unilever is only a marketing company. It is not manufacturer. It is not manufacturer at all. They take the things, they test the thing as on their quality. If it's sourced, they put their brand, they sell it, they advertise it, they sell it. This is their business model. So you should be knowing what is Hindustan Unilever, how you Hindustan Unilever was formed. Earlier it was H, now it is HUL, earlier it was HLL. What was HLL and why it has become to HUL? What is the difference between these two companies? And how large is the company? What are the products of the company? Who is the CEO? Where is the headquarter? What are the brands? The big brands of Lux and all. What are the big brands? Suppose you go to Hollis. Hollis was the brand of some XYZ another company. Now it has been taken by HUL. So why it has, so that study you have to do about the company. The more you go through the company, the better understanding you will be having about the success of the company. So please, you can allot these work. Research work will be done by someone else. PPT presentation and putting it into the slides can be done by someone else who is very good into that. The writing part can be done by someone else who is very good in writing, making the sentences and all those things, framing. So that if you are five people, you have to divide your work. How you are going to do? Who is very good in making pictures and all in PPT? You have to put who is there good in research. So that who can be there at the time of presentation and speaking. There can be a person who is very good speaker, but and there can be a person who is a very good researcher but not very good speaker. So you have to allot your work in the five team members, and in your last side of the PPT on that day you have to write the thing X, Y, Z, A, B, who have done what, because it should be a team work. It should not be individual work. It should not be individual work. Okay, so you have to do the background research of the company and you have to do the business model research of the company. Please, these two things are very important. I'm telling you, background research, company form, promoters, how big the company, business model, the products, the brands, how they are, what the goods they are producing, where they are selling, and all those things. These two are very important to know.
whether I should be investing into that company. If it is XYZ Chemical Limited and I have bought the share of XYZ Chemical Limited, but which chemical they produce, I don't know. I don't know. So this should not be the situation. You should be knowing. How to know the best? I'm going to share one website, but you can use any website. First of all, you can go to Naukri.com. You can go to the XYZ company's own website. Suppose Hindustan Unilever's own website, you can go. You can go to Money Control. You can go to NSC website. You can go to SEBI website. On different website, you will find, try to get the data from a relevant website. If you are getting something on Money Control, you are getting something on Screener, you are getting something on Stock Pro, you are getting something on SEBI website or NSC website, we can say that these are the authentic data. If you are doing something Google and you are getting something on Wikipedia, you know anyone can write anything in Wikipedia. So you should not be taking the data or the information from doing the Google. Please, you can Google, but you have to go to the relevant website. Please try to understand that. Okay. It may be that you are doing the Google and you got some old PPT and there is Mr. X is the chairman of Hindustan Unilever and he died 4 months back. So it should not be the situation. It should not be the situation. You have to understand that. That is the reason I'm telling you, you have to go on relevant website. Okay. Is it clear? Anyone having any doubt in this? Please let me. Yes, students, any doubt, any question if you have, you can ask. No, ma'am. Sir, please repeat the site names. No, ma'am. What? Which one will be better? Okay. So I'm telling you, you can go on Screener, you can go on Money Control. Okay, you can go on NSC. Sir, I have a one doubt. Or you can go on BSC, you can go on SEBI. These are the relevant website where you can go. Yes, somebody has Sir, a doubt. who will allot the companies to whom? What you are saying? सर कंपनी कौन बताएगा किस स्टूडेंट को कौन सी कंपनी चूज करनी है? आपके टीचर बताएंगे बेटा. ओके सर. ठीक है, हो सकता है आज ही आपको बता दे. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है. Now I am sharing you a website. I'm again telling you this can be one of the website which you will be using, and I'm going to discuss a company which will not be allotted to anyone. This is only example. So ma'am, please take care. We are not going to allot this company to anyone. Okay. Now suppose I am going and this is a website called a screener.in. एंड मैंने यहाँ पे जाके यहाँ लिख दिया स्क्रीनर लिख दिया, सॉरी नेस्ले ऑन दिस नेस्ले आई रोट एंड ये नेस्ले डेटा आई गॉट इट. नाउ इफ फर्स्ट थिंग about the company, Nestle India Limited is the subsidiary of Nestle, which is a Swiss MNC. So I got to know Nestle is the brand of Swiss. Now its subsidiary is Nestle India, which is working in India. Now Nestle India, what is the business? What is their player? What is their revenue breakup? How much is their domestic? How much their export? What are their brands? Suppose Kit Kat, Munch, Milky Bar, all those things. Now they have dairy products also. So the Maggi, masala. So at that little I will get to know about Nestle a lot from here. You can get to know. You can get to know a lot from here. Beyond this, what you can do beyond this, this is the very basic thing which you can do. Other thing, you click here, series Nestle.in. If I click here, I will directly go to, I hope my screen is visible, Jyoti ma'am? It's visible, sir. Okay. Now I have been diverted to Nestle website, and now they will talk about their thing, verifying human. Now they are or they may be asking some captcha and all. Let me. So okay. So now I've gone to their website. They will write about their stories, their business, their Nestle in society, whatever they. So please go through these things. My humble request, go through these things before
coming up with your presentation. If you have not gone through these things about your company, then it will not give you. You can have the picture. Suppose this is the picture. This picture of logo, you can take it, put it in your PPT. Some brands you can take and put it in your PPT. So that will make your PPT nice. And whenever you will be presenting in front of the audience, they will feel happy. Because it may be that sometime in speaking you may remember or something like that, but if your PPT will be looking nice, that the people who will be going from your stall or something, whatever we are going to put, they will feel happy. They will see that bachas have done a lot of research. So that is the reason. Please do the proper research. Okay, is it okay? Clear? Should we move? No. Yes, sir. Now, after doing the business model analysis, second thing is the financial analysis. Financial analysis is that we have to discuss, we have to go through whether the company's business, the company's finance is good or not, company is working properly or not. How to see all these things, the very basic things which you have to discuss, not very much. The first thing you have to see their profit and loss, whether you do understand profit and loss statement or not, it is not going to affect you. You have to see if the sales of the company, see, sales of the company is increasing day by day. Sales of the company is increasing day by day. So that means you can tell this company is a growing company. If sales, suppose you have been given XYZ company and it says in 2013 it was 9,000, then 10,000, then 11,000, 12,000, 13,000. It is increasing. So that means it is showing that business is growing. Business is growing. And suppose you saw any company where sales is not increasing or increasing, suppose in 10 years, it has increased only 10% in 10 years. So that means business is not growing very much. Unless until business will grow at least how much the real expectation of any business. Our GDP grows by 6-7% and our nominal GDP is 6-7% and 6-7% is our real. So that means inflation is 6-7% and GDP is 6-7% real. The total, if your business is growing by 12-13%, so that means your business is good business. और अगर पता चला कि नहीं जी पूरे साल में 2% ग्रो हुआ या 10 साल में 5% ग्रो हुआ, तो दैट बिजनेस इज नॉट वेरी गुड बिजनेस एंड यू शुड नो बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग एज रिक्वायर्ड बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग. ठीक है, तो दैट यू हैव टू सी कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग टू द बिजनेस, वेदर द सेल्स इज इंक्रीजिंग in a right manner or not. Somewhere you will find here sales, and in some company instead of sales there will be revenue. Suppose I am taking a company called as HDFC Bank. So now if it is a service company, you will see the term revenue instead of sales. So do not get confused कि हाँ ये क्या हो गया, ये तो आप सर ने सेल्स बताया था, यहाँ सेल्स तो है नहीं. तो if it is a service company, you will find revenue instead of sales, and if it is a goods company, you will find the term sales. जो बिजनेस स्टडी में जो अकाउंट्स के बच्चे होंगे उनको हर जगह रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ाया जाता है. दैट इज समथिंग एल्स. डू नॉट गेट कंफ्यूज. ओके, please bacha, those who are from commerce background, if I'm going to use some terminology, do not get it confused from whatever is being taught by your teachers in the school, because हो सकता है मैं कुछ गलत पढ़ाऊं, मैम ने आपको सही पढ़ाया, उसी को आपको ध्यान रखना है, because they are teaching you from the board point of view, I am teaching you from in the industry point of view. तो please try to understand, उसको आप लोग confusion में नहीं आएंगे. ठीक है. Now, so now again if I see this HDFC Bank, now its revenue was 35,000, 42,000, 50,000, 60,000, 72,000, 1 lakh, 1,20,000, 1,20,000. So I can see this company is increasing, growing day by day. So I can say this company is a good company. Its revenue has become approx 10 times in 10 years. If you see, it was 35,000 crore and it has become 3,21,000 crore. So लगभग 10 साल में 10 गुना हो गया है. So this company is growing very good. So that way you have to come up with your analysis. Suppose if I see a company like suppose Vodafone, let me see, I don't know, I'm seeing only to give you some examples. And if I see Vodafone,
what happened to Vodafone? If I say its revenue was 22,000 2013 and it has become 40,000, मतलब 10 साल में केवल 2 गुना हुआ मीन्स, तो आई कैन सी नहीं, इफ आई हैव टू कंपेयर दिस टू बिजनेस आई विल से HDFC बैंक इज मच मच बेटर एज कंपेयर टू वोडाफोन। तो दैट यू हैव टू सी कि हाँ, अगर इंडिया की इकोनॉमी 12-13% ग्रो कर रही है, 6% GDP है, 6% इन्फ्लेशन, तो 12-13%, तो 12-13% अगर बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा तो दैट बिजनेस विल नॉट सर्वाइव इन लॉन्ग टर्म। दैट यू हैव टू गिव योर इंटरप्रिटेशन। इज इट क्लियर बच्चा लोग? क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. Now, another thing very important, if your revenue is increasing, I'm again going to my nursery example. If my revenue is increasing, I have to see whether my profit is also increasing or not. Suppose I am buying aloo at 10 rupees kg and selling it at 8 rupees kg, my revenue will be increasing every year. सब लोग खरीदेंगे मुझसे। If I am buying it from the mandi at 10 rupees kg and selling it at 8 rupees kg, I will be the cheapest seller. Everybody will be buying from me. But ऐसा ना हो कि मेरा बिजनेस कुछ दिनों के बाद बंद हो जाएगा। तो प्लीज आई हैव टू सी माय प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग और नॉट। दैट इज द अनदर थिंग। एंड द इंक्रीज इन नेट प्रॉफिट अप्रोक्स कोरिलेशन जो आपने पढ़ा है क्लास 11th में, उसका सेल्स की ग्रोथ में और प्रॉफिट की ग्रोथ में द कोरिलेशन शुड बी पॉजिटिव, शुड बी, आई एम नॉट सेइंग परफेक्ट वन होना चाहिए, लेकिन एक पॉजिटिव होना चाहिए कि हाँ जी, अगर मेरा 10 साल में रेवेन्यू 10 गुना हो गया तो प्रॉफिट भी 9 टाइम्स हो जाए या 12 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब पता चला सेल्स तो 10 गुना हो गया और प्रॉफिट केवल 2 गुना हुआ, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बिजनेस, देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बिजनेस। तो वी हैव टू सी द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, इट इज ग्रोइंग और नॉट। हाँ जी नमन बताओ। नमन, यू हैव रेज्ड द हैंड। Okay, so that we have to see the profit. You see this net profit, ठीक है। नेट प्रॉफिट को देखना, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉफिट्स एंड ऑर्डर्स, उसके चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, स्कूल में आपको पढ़ाया जाएगा, बात की बात है। फिलहाल केवल आपको नेट प्रॉफिट देखना। हम लेमैन के लैंग्वेज में चीजें पढ़ रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ेंगे। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, वो सब डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपको ये देखना है, सिंपल एक विज्यूम करो, मैं एक आलू का बिजनेस करता हूँ, आलू खरीदता हूँ, बेचता हूँ। पहले मैं 10 किलो आलू बेचता था, अब मैं 20 किलो आलू बेचता हूँ। अगर मैं पहले 10 बेचता था, 20 बेचता हूँ, दैट मीन माई बिजनेस इज ग्रोइंग। अगर मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, इसका मतलब मेरा बिजनेस अच्छा है। पहले मैं 10 बेचता था, आज भी 10 बेचता हूं, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं है। पहले मैं 10 बेचता था, अब केवल 8 ही बेचता हूं, दैट मीन्स मेरा बिजनेस और खराब है। तो माई सेल्स इज इंक्रीजिंग और नॉट। एंड फिर पहले मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होता था, अब मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो दैट मीन्स माई प्रॉफिट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग और नॉट। So these are the two very important things for the business which is given to you, and you have to see it whether it is increasing, growing or not. Third very important thing is cash from operation. See this, you are not supposed to go for investing, financing. Cash from operation means जो हम डे टू डे बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से पैसा आता है कि नहीं। सपोज में आपने आलू 10 रुपए का खरीदा, 12 रुपए का बेचा, लेकिन जिसको बेचा उसने कहा जी पैसा मैं बाद में दूंगा, अब वो बाद कभी आया ही नहीं। ठीक है, 10 का खरीदा, 12 का बेचा, you have purchased the aloo at 10 rupees kg, you have sold the aloo at 12 rupees kg, there is a profit, but that profit has not been converted into cash. जिसने कहा वो बाद में देगा जी। अब वो तो you have to see your operating cash, operating first thing, operating कि operating means business से cash. There are investing also, financing also. You are not supposed to go through that. I'm telling you, you have to use only the term operating. Operating मतलब business से कैश आ रहा है कि नहीं आ रहा। Now see this business. इस 2013 में इसमें 1700 करोड़ का आता था, देन थोड़ा कम हुआ, फिर 18 हुआ, 20 हुआ, 22 हुआ, 24 हुआ, 22 हुआ। तो नाउ एवरी ईयर थोड़ा 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 बढ़ रहा है। नाउ इट द कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज 4000। तो पिछले 10 सालों में करीब करीब इनका कैश फ्रॉम ऑपरेशन 3 टाइम्स हो गया है। तो दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि नहीं, वॉट एवर देयर सेल्स इज इंक्रीजिंग, देयर प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग, एंड दैट प्रॉफिट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू कैश। वो प्रॉफिट बेच के फिर उनके पास पैसे भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि केवल बेच रहे हैं और सब डेटर्स या कुछ बनते जा रहे हैं, स्टॉक्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ता जा रहा है, ऐसा नहीं है। इनके पास कैश आ रहा है। तो ये तीनों चीज आप लोग को समझ में आ गई अच्छे से? क्लियर है? Yes, sir. ओके। तो अब
आपको जो भी कंपनी अलॉट होगी, यू हैव टू मीन्स मेक सम एक्सेल, मे बी सम पाई डायग्राम, मे बी सम बार डायग्राम, कि हाँ जी पिछले 5 सालों में रेवेन्यू क्या हुआ, 2014 में क्या था, या 10 सालों का, डिपेंडिंग अपॉन दैट यू हैव टू थिंक कि आई विल टेक 5 year डेटा, आई विल टेक 10 year डेटा, आई विल टेक ओनली 3 year डेटा. That is your presentation part and it should be unique. We are not going to give you any guidelines for that. You have to use your own mind कि हाँ मुझे सबसे अच्छी एनालिसिस देनी है. आपको सोचना है कि मैं कितने साल का डेटा दूंगा, दे सकता हूं, मेरे स्लाइड पे कितना आएगा. कई बार होगा कि मैंने 10 साल का देने की कोशिश किया लेकिन वो स्लाइड पे इतना छोटा हो गया कि दिख ही नहीं रहा. कई बार हो गया कि मैंने केवल 3 साल का डेटा गया तो वो रेलेवेंट नहीं है. तो यू हैव टू यूज योर ओन माइंड because you are coming as an analyst. हाँ जी, how many years I will show as a bar diagram कि हाँ पहले मेरा क्या सेल्स क्या था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या होगा. Now there is an investor sitting in front of me. He will say, see sales is increasing, he will try to invest. He will say sales is not increasing, he will I will say sales is not increasing, or sales is constant, or sales is decreasing. You should not be investing. So that is the way you have to come up with your presentation. And we are not going to give you guidelines कि हाँ आपको यहाँ बार डायग्राम बनाना है, यहाँ पे आप पाई डायग्राम बनाना है, यहाँ पे इतने साल का डेटा लेना है. That is your analysis. Everyone have to come up, every team have to come up your unique presentation. क्या होना चाहिए उस प्रेजेंटेशन में वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाना है. लेकिन वो प्रेजेंटेशन कैसा होगा, how uniqueness of your presentation, content will be same, but presentation of same content will be different by different team. ये आपको ध्यान रखना है. उधर जाना देखना कौन कौन है इस पे, फिर आप बताइए. आगे बढ़े क्या, अगर आप लोग अलाउ करें तो. अगर Yes, student. Question. Do you have any question to ask? No, ma'am. ठीक है. नाउ अब एक चीज और होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको बिजनेस का ROC, कुछ कांस्टेंट चीजें होती हैं जो आपको देखनी होती है किसी भी बिजनेस में, वेन एवर यू आर बाइंग, कि क्या बिजनेस प्रॉफिट पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है. जैसे सपोज मैं देता हूँ मारुति, द कंपनी विच आई एम टाइपिंग हियर, यू विल नॉट टेक दोज कंपनीज, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये कंपनी एक्सक्लूड कर देंगे कि ये कंपनी किसी को नहीं देंगे. अब नाउ सी दिस कंपनी ROC इज 21%. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस कंपनी में जितना भी पैसा लगाया है उसके ऊपर ये साल में 21% कमाती है. सपोज इस कंपनी में 5 लाख करोड़ लगा है, तो 5 लाख करोड़ का 20% कितना होता है, 1 लाख करोड़, करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपीज का ये इनकी अर्निंग है. ठीक है. तो आपको अब अगर कंपनी, सपोज एक कंपनी ऐसी है जो केवल 4% कमाती है, 2% कमाती है. सपोज आई शो यू अ कंपनी कॉल्ड एज मे बी यस बैंक. नाउ अब इस कंपनी ही 5% कमाती है, तो क्या इस कंपनी में आप अपने इन्वेस्टर को बोलोगे कि आप इन्वेस्ट करो? जब तक कंपनी नहीं कमाएगी, कंपनी में इन्वेस्ट करके मैं भी नहीं कमा सकता. पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है. सबसे पहला चीज है कंपनी कमाए. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी की अर्निंग क्या है. योर कंपनीज अर्निंग इज 15%, 20%. देयर इज अ फंडामेंटल रूल. इन लॉन्ग रन the earning of the company and the earning of the shareholder is generally same. This is the basic principle of investing. तो अगर मेरी कंपनी 20% कमा रही है, और वो आज हो सकता है कि यस बैंक टुडे इट इज अर्निंग 5%, और हो सकता है आज के 2 साल बाद वो 20% अर्न करने लगे. तो इफ यू आर सेइंग कि यहाँ हमें यस बैंक में इन्वेस्ट करना है और ये 20% अर्न करेगा, तो यू हैव टू गिव द लॉजिक्स, क्यों करेगा, कैसे करेगा. ठीक है. और अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैंने इससे पहले लिया था, कौन सी कंपनी लिया था इससे पहले मैंने, मारुति, सॉरी, तो मारुति इज अर्निंग 21%. हो सकता है कि आज के 10 साल बाद ये केवल 5% ही अर्न करने लगे. क्यों करेगा, ऐसा क्यों होगा कि ये 5%? तो इफ यू आर सेइंग कि नो वी शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग इनटू मारुति बिकॉज इट्स अर्निंग विल डिक्रीज इन ईयर्स टू कम. अदरवाइज एनीवन कैन से दैट कि अगर मैं मारुति में पैसा लगाता हूं तो लगभग 20% के आसपास की मेरी अर्निंग होगी इन लॉन्ग रन. बट it is not certain because the earning of the Maruti can decrease in years to come and the earning of the Yes Bank can increase in years to come. This is the present earning. आज ये कंपनी कितना कमा रही है. Now you have to come up with the logics
कि हाँ जी, मारुति इंडियाज GDP is increasing, per capita income is increasing, urbanization is increasing, people are moving to urban areas, even the rural areas people are buying cars. So now we have how many, what is the percentage of people using car in years to come, when ladies will also started going and working. Then earlier only males were purchasing car, now females will be also be purchasing car. So that way you have to come up with the logics कि हाँ, how you are expecting the earning of the company will increase, and if you are saying the earning of the company will decrease, how it will decrease and what is the reason. What is the reason? You have to give your reasoning, and your reasoning ऑलवेज रिमेंबर दैट कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो आप कह रहे हैं वो सही होगा, क्योंकि अगर शेयर मार्केट में एक कभी भी सही नहीं होता। अगर जिस दिन सब लोग एक जैसा सोचने लगेंगे उस दिन शेयर मार्केट बंद हो जाएगा। शेयर मार्केट में हमेशा दो व्यूज होते हैं। अगर दो व्यू नहीं होंगे, अगर सबको लगेगा कि हाँ इस कंपनी की अर्निंग बढ़ेगी, तो सब लोग तो उसको खरीदेंगे, कोई बेचने वाला होगा ही नहीं। अब बेचने वाला नहीं होगा तो शेयर मार्केट बंद हो जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देयर इज अ बायर, देयर इज अ सेलर इन द शेयर मार्केट, एंड देन ओनली शेयर मार्केट एग्जिस्ट। तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर डिफरेंट व्यूज। इसीलिए शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों का कभी किसी से झगड़ा नहीं होता, जनरली झगड़ा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो दूसरों के व्यू को रिस्पेक्ट करते हैं। मैं शेयर मार्केट में प्रॉफिट तभी कमा सकता हूं जब मेरे सामने बैठा हुआ गलत होगा। अगर मैं गलत वाले को रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो कभी गलत होगा नहीं, वो तो सही होगा। वो सही होगा तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? तो मुझे तो गलत लोगों को ढूंढना होता है, कौन गलत है उन्हीं को ढूंढना होता है, उन्हीं से मुझे चीज खरीदनी होती है। और जब मुझे बेचना होता है तो मुझे ढूंढना होता है कौन गलत है, कि हाँ मुझे तो बेचना है, कौन है खरीदने वाला। दैट इज द थिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर शेयर मार्केट में हमेशा दो व्यूज होते हैं। हो सकता है कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन दिया और आपने बताया, अपने व्यूज बताया, एंड दैट इज ऑलवेज करेक्ट। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर कि आप कभी ये मत सोचना कि नहीं मैंने एरिया घटेगा। तो आप अगर इफ यू आर थिंकिंग दिस ROC will decrease in years to come, so you have to give your logics, whatever the reasoning you have to give. And if you are saying ROC is supposed to increase, what? And if ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे नहीं ROC जो है वही रहेगा, तो that you have to give your reasoning accordingly. ठीक है? तो एक ROC बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी ROC कंपनी की क्या है पहले तो, एंड इन ईयर्स टू कम क्या होने की संभावना है, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन। आगे बढ़े। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू पीपल शुड बी नोइंग कि कंपनी के प्रमोटर्स, सीरियस प्रमोटर्स होल्डिंग, प्रमोटर्स की कंपनी के ऊपर होल्डिंग क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि प्रमोटर्स अपनी कंपनी के शेयर बेच बेच के भाग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाँ कोई नीरव मोदी और क्या बोलते हैं कि विजय माल्या होने वाला है? तो कैसे देखोगे? ये यहाँ देखो, यहाँ देखो प्रमोटर होल्डिंग 58%। नाउ यू विल गो एंड सी। नाउ अगर मैं देखूं मारुति में तो पिछले कुछ सालों में प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। इनकी देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है। व्हाट डज इट मीन? कि प्रमोटर्स को लग रहा है कि हमारी कंपनी अच्छी है, दे आर बाइंग देयर शेयर फ्रॉम द मार्केट और फ्रॉम समवन एल्स। तो दे आर, और अगर यही 56 से 40 हो जाता, 30 हो जाता इन ईयर्स, तो यू हैव टू थिंक कि हाँ कंपनी के शेयर वो प्रमोटर खुद बेच रहे हैं। दैट मींस दे आर थिंकिंग या तो कंपनी खराब है या अभी बहुत हाई प्राइस है, बेच देते हैं बाद में खरीद लेंगे। तो इफ प्रमोटर्स आर थिंकिंग कि अभी बहुत हाई प्राइस है तो फिर आप क्यों खरीदोगे? तो प्रमोटर्स की जो बाइंग पैटर्न है इसके बेसिस पे भी आप अपने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एनालिसिस करके बताते हो कि अब जैसे मारुति की मुझे एनालिसिस करना होगा। आई एम अगेन रिपीटिंग, the company which I am using as an example will not be given to anyone. Okay. Now, if I have to give the analysis of Maruti, I will see if I see the promoters holding in 2021 and compare it with the 2024, promoters have bought some shares from the market, from the FIIs, DIIs. That means promoters are thinking their shares are being sold at a lower price and they are investing into their own company. So that means if promoters, those who know a lot about their company, they are buying, so I am recommending to my client that you should also be buying. ठीक है, इस तरह से। नेहा, you want to say something? Yes, sir. Just I want to say that I think the students of 9th, 10th, I do not know the term promoter, who are the promoters. So I think we need to tell them first who are the promoters. कोई बात नहीं मैम, इनके टीम में बच्चे होंगे ना?
इनके Okay. कंपनी में 11-12 वाले भी होंगे, दैट इज द रीजन मैंने इनको कहा। ठीक है, वैसे मैं आपने बोला तो मैं बता देता हूँ, प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी के मालिक होते हैं, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट किया होता है। ठीक है, जिन्होंने कंपनी स्टार्ट, जैसे कि अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो मुकेश अंबानी विल बी द प्रमोटर। ठीक है, अगर मैं मारुति की बात करूं तो सुजुकी वॉज द प्रमोटर, अब तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई है, तो पहले सुजुकी इसके प्रमोटर थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ये इनकी प्रमोटर है, जो मारुति को इंडिया में लेकर आई थी, मारुति के साथ इनका वो हुआ था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रमोटर वो होते हैं जिसने कंपनी को स्टार्ट किया था। अब मैंने स्टार्ट किया, मुझे ही लगता है कंपनी खराब है तो मैं बेचूंगा, और मुझे लगता है कंपनी अच्छी है तो मैं उसके शेयर और खरीदूंगा जो मैंने पहले कभी बेच दिए होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर किसी को थोड़ा सा भी नॉलेज होता तो उसका पेटीएम में पैसे नहीं डूबते। देखिए जरा मैं आपको दिखाता हूँ, एक टाइम ऐसा था जब प्रमोटर्स ने, देखिए 92-3% शेयर पब्लिक के पास आ गया था। देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 में अगर पब्लिक के पास 93-94% शेयर आ गया था, यानी उस समय जो प्राइस था इस शेयर का, उस समय प्राइस था इस शेयर का 2022 का डेटा मैं आपको दिखाता हूं, इट वाज अप्रोक्स कुछ बहुत ज्यादा प्राइस था उस कंपनी का, कुछ 2000 के आसपास था। ठीक है, अब तो खैर, तो ये देखो ध्यान से, यहाँ देखिए 1800 के ऊपर था 2000। अब 2000 में प्रमोटर्स को लग रहा था भाई ये कंपनी तो बहुत ही महंगी हो गई है, हम इसको अभी बेच देते हैं, बाद में पक्का कम होगी। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे शेयर बेच दिया और जनरल पब्लिक ने खरीद लिया। अब उसके बाद जब इसके शेयर का प्राइस नीचे आया, देखो नीचे आया, तो फिर पब्लिक से इस शेयर को खरीद लिया गया। देखो पब्लिक के पास कितने बचे, 21, 22, 30 हो गया, पहले क्या था 92, 93 था। तो दैट मीन्स प्रमोटर्स यानी जो ओनर्स होते हैं वो खुद जो है वो, उनको पता होता है कि हमारी कंपनी किस रेट पे बिक रही है, सही बिक रही है, गलत बिक रही है, तो उनकी एक्टिविटी को देख के आप आराम से ये कहते हैं एस्टिमेट लगा सकते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है, एक चीज और बता रहा हूं, समटाइम यू विल नॉट सी प्रमोटर्स इन द होल्डिंग। जैसे अब यहाँ पे प्रमोटर्स आपको नहीं दिख रहा होगा, देखिए FIIs DIs दिख रहे हैं और आपको पब्लिक दिख रही है, यहाँ पे प्रमोटर वर्ड दिख नहीं रहा। FIIs वो होते हैं जो फॉरेन के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया की कंपनीज में। DIs होते हैं जो इंडिया की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज जो होती है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोग होते हैं, और पब्लिक होती है और प्रमोटर, यानी 4 लोग होते हैं जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रमोटर वर्ड नहीं दिख रहा, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि ये जो FII जो ये प्रमोटर है वो एक्चुअल में उन्होंने बाहर एक कंपनी बना ली है इंडिया के बाहर, और उस कंपनी के थ्रू यहाँ इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए आपको ये दिख तो डेटा FIIs में रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्रमोटर है। तो इसीलिए जब आप इसके बैकग्राउंड पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा कि ये, आपको लग रहा है यहाँ प्रमोटर तो 0 है, प्रमोटर दिख नहीं रहे यहाँ पे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये जो लोग, ये जो शेयर होल्डिंग है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कंपनी को बनाया था, इनके नाम मिलेंगे, इन्होंने कंपनी जाके बाहर बना ली, क्योंकि बाहर जाके थोड़ा टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। तो कुछ लोग सिंगापुर में, दुबई में जाके कंपनी रजिस्टर कर देते हैं और फिर उसके थ्रू इंडिया की कंपनी में होल्डर बन जाते हैं। तो इसलिए आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे प्रमोटर्स नहीं है। तो ये थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे आपको देखो अब यहाँ प्रमोटर नहीं दिखा तो आपको गूगल करना पड़ेगा, व्हाई देयर इज नो प्रमोटर शोइंग इन पेटीएम। अगर गूगल करोगे तो आपको मिल जाएगा, थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, थोड़ा गूगल, यही दिस इज द रिसर्च विच यू पीपल हैव टू डू एंड देन यू हैव टू कम अप विद योर प्रेजेंटेशन। ओके, तो प्रमोटर होल्डिंग क्लियर हो गया सबको कि प्रमोटर होल्डिंग के बेसिस पे कैसे आप अपने इन्वेस्टर को गाइड करेंगे? क्या मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, नेक्स्ट एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, आप लोग को दिखता है डेट कंपनी के ऊपर लोन कितना है और क्या वो लोन बढ़ रहा है या घट रहा है। रिपीट कर रहा हूं मैं, लोन ज्यादा है या कम है। पहले अगर ज्यादा है तो इट इज नॉट गुड, अगर कम है तो इट इज गुड। दूसरी बात, सपोज एक कंपनी पे 100 करोड़ लोन है, दूसरे पे 90 है, तो आप कहोगे 90 वाला गुड है, सर ने बताया था जिसपे कम है वो अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुकेश अंबानी के पास 100 करोड़ लोन है और सुनील त्रिपाठी के पास 90 करोड़ लोन है, तो मुकेश अंबानी अच्छे हैं। क्यों अच्छे हैं? क्योंकि उनकी जो टोटल वेल्थ है उसमें 100 करोड़ 0.0001% होगा, और मेरी टोटल वेल्थ में 90 करोड़ पता चलेगा 500 गुना होगा। तो आपको इस बात को देखना होगा कि टोटल वेल्थ के रिस्पेक्ट में, जैसे अब यहां पे लिखा है डेट इक्विटी रेशियो, ये आपको देखना है। अगर ये डेट इक्विटी मतलब उसका कंपनी का जो मालिक है, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, उनके टोटल वेल्थ के रिस्पेक्ट में, टोटल इक्विटी जो उनकी है उसके रिस्पेक्ट में इस कंपनी के ऊपर केवल 9% का लोन है, केवल 9% का लोन है। ठीक है, तो अब
कि अगर आप टर्म देखोगे लोन आपको यहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में बोरोइंग्स देखोगे तो यहाँ पे 1000 करोड़, 20 करोड़, 90 करोड़, ये आपका लोन है। दिस इज द लोन ऑन द कंपनी। ठीक है, बैलेंस शीट में आपको लोन दिखाई देगा। इस समय कंपनी के ऊपर 370 करोड़ का लोन है, इफ आई एम सीइंग द डेटा ऑफ प्रेजेंट। ठीक है, अब ये लेकिन ये 370 करोड़ ज्यादा है या कम है, कैसे पता चला? देखो, ये जो होता है जिसे हम इक्विटी प्लस रिजर्व्स कहते हैं, मैं बहुत टेक्निकल में नहीं जाऊंगा अदरवाइज बच्चे कंफ्यूज होंगे। ये कंपनी के ओनर का, कहते हैं ना, ओनर की अपनी वेल्थ है। ये दोनों 96 प्लस 3896 मतलब करीब करीब 4000 करोड़। देखो ध्यान से, 96 ये कंपनी में उन्होंने पैसा लगाया, प्लस इतना पैसा अभी उनका रिजर्व है। रिजर्व मतलब इतना पैसा आज कमा के उन्होंने कंपनी में छोड़ा हुआ है। तो टोटल जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी के अंदर लगभग 4000 करोड़ है, और इस कंपनी के ऊपर 370 करोड़ का लोन है। तो 4000 विथ रिस्पेक्ट टू 370 देखोगे तो ये करीब करीब 10%, 9% आता है। वही आपको 9% ऊपर दिखाई दिया होगा जो यहाँ पे है। ये जो आपको 9% दिख रहा है वो है। अब ये 370 ज्यादा है या कम है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कंपनी की टोटल वेल्थ के रिस्पेक्ट में कितना है। 370 आप देख के नहीं बता सकते कि अच्छा है या खराब है। मैं अगर देखूं इसी को, अगर मैं वोडाफोन को देखूं, सपोज वोडाफोन को मैं देखता हूं, तो मुझे पता है कि हाँ जी वोडाफोन में मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि वोडाफोन पे अगर मैं लोन देखूं, देखो जरा, तो कंपनी के ऊपर पता चलेगा 2,50,000 करोड़ का लोन है। देखो ध्यान से, 2,50,000 करोड़ का लोन है। अब 2,50,000 भी कम हो सकता है, लेकिन जब मैं इसकी डेट इक्विटी को देखता हूं तो यहां देखो डेट इक्विटी मतलब दिखाई नहीं दे रहा, यानी इक्विटी तो नेगेटिव में है, ओनर का पैसा है ही नहीं कंपनी में, और खाली लोन ही लोन का पैसा है। देखो कैसे पता चला मुझे कि ओनर का पैसा नहीं है। देखो ओनर का पैसा देखो, 69,000 करोड़ उन्होंने लगाया था। ध्यान से देखो, 69,000 करोड़ लगाया था और 1,65,000 करोड़ का लॉस कर चुके हैं। रिजर्व नेगेटिव में है, रिजर्व नेगेटिव में यानी इतना तो लॉस हो चुका है, यानी उनका लगाया हुआ पैसा भी डूब गया, प्लस उन्होंने कुछ और कहीं वहीं से जो लिया था वो भी डूब गया। तो ओनर का पैसा तो हो गया माइनस में करीब 1,00,000 करोड़, और लोन कंपनी के ऊपर 2,00,000 करोड़ है। तो ये कंपनी के डूबने के चांसेस ज्यादा है। तो जिस भी कंपनी में, आप सपोज ऐसे जान लो, कंपनी में ओनर का पैसा और लोन का पैसा दोनों मिलकर कंपनी बनती है, दोनों मिलकर कंपनी बनती है। मुझे एक पान का बिजनेस खोलना है, मुझे एक चाय का बिजनेस खोलना है, मुझे एक आलू का बिजनेस खोलना है, तो मैं कुछ अपना पैसा लगाऊंगा, कुछ ओनर का कहीं बाहर से लूंगा। तो जो अपना पैसा लगाता हूं उस, और बिजनेस करते करते जो प्रॉफिट होता है वो भी लगा देता हूं। तो जो अपना पैसा लगाता हूं उसे मैं इक्विटी कहता हूं, जो करते करते प्रॉफिट होता है उसे मैं रिजर्व कहता हूं, और जो लोन लेता हूं उसे मैं बोरोइंग कहता हूं। तो जो अपना पैसा है वो इक्विटी और रिजर्व अपना पैसा है, और जो बोरोइंग है वो लोन का पैसा है। तो जब तक बोरोइंग का पोर्शन आपके अपने पैसे के रिस्पेक्ट में कम होता है, 5%, 7%, 8%, 10%, तो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब पता चला लोन हो गया 50%, 60%, 80%, 100%, 200%, तो वो कंपनी अच्छी नहीं मानी जाती। मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ लोन अमाउंट, अब देखो कोई भी अच्छी कंपनी ले लो, सपोज मैं लेता हूं एशियन पेंट। नो, अब मैंने एशियन पेंट लिया तो मैं इस कंपनी को देखूंगा, तो इस कंपनी में ओनर का पैसा करीब करीब 18,000 करोड़ है। देखो जरा ध्यान से, 96 ये, 70,000 ये टोटल मिला के करीब करीब 18,000 करोड़ है, और लोन कंपनी के ऊपर 2,000 करोड़ है, तो करीब करीब 10% के आसपास है। ठीक है, इट्स फाइन। तो अगर जैसे आपके पापा ने घर बनाया, 5 करोड़ का घर बनाया, उसमें 50 लाख का लोन ले लिया, 5 करोड़ का या 1 करोड़ का लोन ले लिया, इट्स फाइन। लेकिन 5 करोड़ का घर बनाया और 8 करोड़ का लोन ले लिया, पता चला घर के लिए भी लोन ले लिया, गाड़ी के भी ले लिया, उसके अंदर टीवी के भी ले लिया, बर्तन के भी ले लिया, और आपकी फीस भरने के लिए भी लोन ले रहे हैं, तो फिर तो पापा के ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ जाएगी ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा। तो आपको और 5 करोड़ के घर बनाया, आपकी वेल्थ है टोटल, और उसमें केवल 50 लाख का लोन है, तो इट्स फाइन। तो आपका लोन कितने अमाउंट का उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी टोटल वेल्थ से आपकी इक्विटी के रिस्पेक्ट में वो कितना है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है बताने के लिए अपने इन्वेस्टर को कि भाई ये कंपनी रिस्की है कि नहीं। दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है लोन का इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे अगर मैं जैसे मेरा नेस्ले था, अगर मैं नेस्ले को देखूं, और इफ आई विल बी डूइंग माय रिप्रेजेंटेशन इन समवेयर इन 2016-17, तो मैं क्या कहता, मैं कहता दिस कंपनी इज बिकमिंग गुड, बेटर, बेस्ट। क्यों? कंपनी का लोन 1,000 करोड़ का था
और कंपनी है रिड्यूस इट्स लोन, देखो ध्यान से देखो, 1000 करोड़ से 20, 18, 33 पे आ गई, यानी कंपनी ने धीरे धीरे अपना लोन पे कर दिया। तो आप, लेकिन अब अगर मैं देखूंगा तो मैं कहूंगा कंपनी का लोन थोड़ा बढ़ रहा है, तो देयर कैन वी हैव टू सी, आपको बताना है इन्वेस्टर को, वी हैव टू सी whether द कंपनी इज यूजिंग दिस मनी इन अ राइट मैनर और नॉट, तो दैट एनालिसिस इज टू बी डन। आपको ज्यादा डिटेल में जाए ना, बस ये है, लेकिन अल्टीमेटली बट आप ये बता दोगे दो कंपनी लोन इज इंक्रीजिंग बट इट इज विद इन द लिमिट्स, तो अच्छा है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर 5% को अच्छा बोले कि 10% को अच्छा बोले कि 20% को अच्छा बोले कि 25% को अच्छा बोले, फिर ये बात है, ये व्यूज है, दिस इज द व्यू। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे फादर, जिंदगी में वो कहते हैं लोन तो लेना ही नहीं। अब उनका व्यू है कि अगर किसी ने लोन लिया तो खराब है, ये उनका व्यू है। मेरा व्यू है कि अगर मैंने 20% लोन लिया या घर बनाने के लिए लोन लिया तो ठीक है, मैं, लेकिन अगर मैं यूरोप घूमने के लिए लोन ले रहा हूं तो खराब है, दिस इज माई व्यू। थर्ड पर्सन कहता है यार लोन नहीं लिया तो जिंदगी क्या है, क्रेडिट कार्ड पे ही जीवन जी रहा है, वो उसका व्यू है। तो कितने परसेंट लोन, तो यू, दैट इज द डिफरेंट व्यूज ऑफ डिफरेंट पीपल। तो अब मैं कंपनी में किसी में इन्वेस्ट करता हूं तो जनरली माई माई लिमिट इज 20%, किसी कंपनी के ऊपर 20% से ऊपर लोन हो तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता, दिस इज माई लिमिट। बट फॉर यू इट कैन बी 25, फॉर किसी के लिए 30 हो सकता है, किसी के लिए 15 हो सकता है। तो यू हैव टू गिव योर लॉजिक्स कि दिस कंपनी इज 20 हैविंग 20% लोन, डेट इक्विटी रेशियो ऑफ दिस कंपनी इज 10%, इट इज गुड, दो वी शुड बी, बिकॉज आपको अपने क्लाइंट को रिकमेंड करना है कि हाँ जी इस कंपनी की क्या सिचुएशन है, ठीक है। तो लोन आपको पक्का देखना है कि लोन कितना है और लोन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लोन का क्या इफेक्ट है कंपनी के ऊपर, दैट एनालिसिस यू हैव टू गिव। तो मैंने आपको बता दिया, पहली चीज आरओसी बताना है, प्रमोटर होल्डिंग बताना है, लोन बताना है, सेल्स की ग्रोथ क्या हो रही है, प्रॉफिट की ग्रोथ क्या हो रही है, और कैश फ्लो का ग्रोथ क्या हो रहा है। एक बहुत और इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको कंपनी के बारे में बताना है, मार्केट कैप। सीरियस, मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है पहले आप ये जान लो, यू शुड बी नोइंग व्हाट इज द मार्केट कैप। If we arrange all the companies of India into descending order of market cap, जो शुरू की 100 कंपनीज होती है उनको हम कहते हैं लार्ज कैप, 101 से लेकर 250 को हम मिड कैप कहते हैं, 250 से 500 को हम स्मॉल कैप कहते हैं, एंड 500 बिलो को हम माइक्रो कैप कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, इफ वी अरेंज ऑल द कंपनीज ऑफ इंडिया इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्केट कैप, तो टॉप 100 को हम लार्ज कैप, 101 से 250 को मिड कैप, 251 से लेके 500 को स्मॉल कैप, एंड 500 बिलो को हम माइक्रो कैप कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन आप कहोगे सर मार्केट कैप के बेसिस पर अरेंज कर दिया, लेकिन मार्केट कैप होता क्या है, देखो क्या है। आज इस कंपनी का एक शेयर, सीधे स्क्रीन, नेस्ले का एक शेयर 2257 का बिक रहा है, यानी आज मुझे एक शेयर खरीदना है तो मुझे 2257 रुपीज देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर मुझे नेस्ले के सारे शेयर खरीदने हैं, जितने भी शेयर हैं इसके मार्केट में, तो मुझे 2,17,523 रुपीज देने पड़ेंगे। आई एम रिपीटिंग, मार्केट कैप मतलब उस कंपनी के सारे शेयर्स की वैल्यू, करंट प्राइस एक शेयर की वैल्यू है। अब मैं अगर सपोज मैंने मारुति लिया था, मारुति के एक शेयर की वैल्यू है कुछ 10,000 के आसपास, 11,000 है। अब मारुति के सारे शेयर्स की वैल्यू, सारे शेयर्स की वैल्यू है 3,46,000, यानी करंट प्राइस ऑफ द शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। तो अगर आप कर देते हो तो आपके पास मार्केट कैप आता है, तो जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उसको करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी इस कंपनी का आज आपको मालिक बनना है कि चारों ये कंपनी पूरी मेरी, तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 3,47,46,075 करोड़ रुपीज अगर आपके पास है, आप देके पूरी कंपनी का मालिक बन सकते हो। वैसे ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली नहीं बनोगे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे वो लोग होंगे जो बेचेंगे ही नहीं, तो कहां से बन जाओगे। अगर आपके पास पैसे हैं भी, मेरा घर है 5 करोड़ का, कोई कहेगा 5 करोड़ है मेरे तो इसका मालिक बन जाऊंगा, वो मैं बेचूंगा नहीं तो कहां से बन जाएंगे। तो देयर आर सम प्रमोटर्स और सम पीपल हु विल नॉट सेल, तो आप नहीं बन सकते, लेकिन कंसेप्चुअली ये कंपनी इतने की है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब मार्केट कैप अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में, अब देखो मैं अरेंज कर रहा हूं, आपको दिखा देता हूं। नाउ अब मैंने
नाउ सी दिस, मेरे पास यहाँ पे मार्केट कैप आ गया, मैंने इसको, अब देखो इंडिया की जो सबसे बड़ी कंपनी आज के टाइम पे है वो है रिलायंस, उसके बाद है आपका टीसीएस, उसके बाद है आपका एचडीएफसी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं केवल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। तो ये अब टॉप 100, अगर मैं 100 तक जाऊंगा इस लिस्ट को नेक्स्ट नेक्स्ट करते हुए, तो ये टॉप 100 जहां तक जाएंगी वो होगी आपकी लार्ज कैप। यानी लार्ज कैप कहां तक है? लार्ज कैप है आपका टाटा कंज्यूमर्स तक, यानी करीब करीब 94,000 करोड़ तक की कंपनियां, यानी सब 1 लाख के आसपास के ऊपर, 1 लाख करोड़ के ऊपर ऊपर की कंपनियां हैं करीब करीब। अब मैं उसके नीचे जाता हूं, अगर मैं थर्ड पेज पे जाता हूं, देखो जरा, इसके नीचे 101 से लेके 250 तक जाऊंगा, ये सब मिड कैप आ जाएंगे। तो जब आपने कई बार सुना होगा मिड कैप है, स्मॉल कैप है, तो आपको अपनी कंपनी का मार्केट कैप देखना है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं, अगर आपकी कंपनी आती है 1 लाख करोड़ या उसके ऊपर की, तो आप कह देंगे मेरी लार्ज कैप कंपनी है। अगर आपकी कंपनी जाती है 1 लाख करोड़ के नीचे, 1 लाख करोड़ से नीचे जाके कहां तक जाती है, आप लिख लो चाहो तो 30,000 करोड़ तक की, 30,000 करोड़ तक की कंपनी को आप मिड कैप कह देंगे। और उसके नीचे की अगर कंपनी होगी तो आप उसको स्मॉल कैप कह देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 लाख करोड़ के ऊपर की कंपनी होगी तो आप कहेंगे लार्ज कैप है, 1 लाख से नीचे जाएगी 30,000 करोड़ तक की मार्केट कैप होगा तो आप कह देंगे मिड कैप है, और 30,000 करोड़ के नीचे की होगी तो स्मॉल कैप है। अब ये डिवीजन भी आपको अपने इन्वेस्टर्स को बताना है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनी होती है वो कम रिस्की होती है, कम रिस्की होती है। मिड कैप जो होती है वो एवरेज रिस्की होती है, स्मॉल कैप बहुत रिस्की होती है। और जो माइक्रो कैप होती हैं, जो उसमें आपको जाना नहीं है, लेकिन जो माइक्रो कैप होती है वो तो दुनिया के कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी लोग उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको उसमें नहीं जाना। तो आपको सपोज आपने रिलायंस आपको कंपनी मिली, तो आप बताओगे अपने इन्वेस्टर को, माई कंपनी इज अ लार्ज कैप कंपनी इन हैविंग द मार्केट कैप ऑफ 19-20 लाख करोड़ एंड देयर इज वेरी लेस रिस्क अटैच्ड विद दिस कंपनी। तो आपको ये लाइंस बतानी है कि आपकी कंपनी का रिस्क कैसा। इस अगर आप अपने इन्वेस्टर को कन्विंस कर रहे हो कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, तो अगर हो सकता है किसी के पास स्मॉल कैप कंपनी है और वो कहे कि हाँ माई कंपनी इज अ वेरी स्मॉल कैप कंपनी एंड यू शुड नॉट बी इन्वेस्टिंग बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्क। इसका एक उल्टा रिप्रेजेंटेशन भी है, मैं आपको बता रहा हूं। जो कहते हैं ना हाथी है, हाथी धीरे धीरे चलता है, तो बहुत लार्ज कैप कंपनी होगी उसमें रिस्क कम होगा, लेकिन उसका ग्रोथ भी कम होता है, ग्रोथ भी कम होगा। और अगर स्मॉल कैप कंपनी, जैसे मैं आपको एग्जांपल, आपके अगर मार्क्स 90 आ रहे हैं, आप खूब पढ़ोगे 99 आ जाएंगे, 100 आ जाएंगे, 10% बढ़ा। लेकिन आपकी क्लास में एक बच्चा है, इसके 30 मार्क्स आ रहे हैं, उसने खूब पढ़ा, 60 आ गए, वो 100% बढ़ गया। 30 से जब 60 हुआ तो वो 100% बढ़ गया। तो सेम हैपेंस विद द कंपनी। तो जो स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी में रिस्क तो ज्यादा होता है, लेकिन उसमें ग्रोथ भी ज्यादा होने के चांसेस होते हैं, यानी पैसे भी ज्यादा बढ़ते हैं लोगों के। तो आपको अब यह है कि आप अपना, आपको देखना है, आपकी अपनी एनालिसिस देनी है। दो माई कंपनी इज अ स्मॉल कैप कंपनी, बट आई रिकमेंड यू टू इन्वेस्ट because there is more chances of growth on the because of this आप अपनी रीजनिंग देंगे। This company is a small cap company and I will invest, since you people are salaried people, retired people, you should not be taking much risk, and that is the reason I request you not to invest into this company। ठीक है। तीसरा बच्चा आ सकता है अपना इंटरप्रिटेशन लेके, दो I give, if you are a retired or salaried person who wants to have stable income, you should not be investing into this company. But if you are in age of 30-40 and you can take risk, you should be investing. So same company, you can tell one person to invest and other person not to invest. समझ में आ रही बात आप लोग को? क्या ये क्लियर है? तो आई होप मैंने आपको वो पैरामीटर्स बता दिए जिसकी बेसिस पे आपको अपने इन्वेस्टर को बताना है कि आपकी कंपनी अच्छी है कि नहीं। आपकी कंपनी क्या है पहले आप बताएंगे, बैकग्राउंड रिसर्च करके, बिजनेस मॉडल रिसर्च करके, फिर आपकी कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं कि नहीं है, दूसरा आप ये बताएंगे। अब तीसरा एक पार्ट और आता है जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, हम लोग के 3 सेशंस होंगे मैम, ध्यान रखना है। कल मैं ट्रेवल कर रहा हूं तो कल हम नहीं होंगे, मे बी हम परसों ले सकते हैं। आई विल बी रीचिंग टू पिरानी, तो आई हैव टू सी व्हाट इज द कनेक्टिविटी। हम एक बार दिन में बात कर लेंगे।
तो कि कैसा है, तो अकॉर्डिंगली एक दिन बच्चों को दे देते हैं, बच्चे विल बिकॉज दिस मच ऑफ रिसर्च दे विल बी डूइंग, तो इनको टाइम भी लगेगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में जो बात करेंगे, अभी आपने केवल मुझे ये बताया कि ये घड़ी खरीदना है कि नहीं खरीदना है। अब दूसरी बात है कि ये घड़ी किस प्राइस पे खरीदना है। ये घड़ी खरीदना, ये घड़ी अच्छी है, लेकिन ये घड़ी क्या मैं 2 लाख में खरीदूंगा या ये 50,000 में खरीदूंगा। तो अगर रिलायंस को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, पहला पहला डिसीजन होता है रिलायंस में इन्वेस्ट ही नहीं करना, काम खत्म। अब आपने कहा नहीं जी रिलायंस में इन्वेस्ट करना है, तो भाई आज जो प्राइस रिलायंस का शो हो रहा है 1300 सॉरी, क्या उसमें बाय करना है या मुझे करेक्शन का वेट करना है। तो अभी आपने देखा व्हाट इज अ गुड स्टॉक, अगले सेशन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अ गुड प्राइस फॉर अ स्टॉक, व्हाट इज अ गुड प्राइस फॉर अ स्टॉक, दैट विल बी अवर नेक्स्ट सेशन। ठीक है, तो वो हम उसमें करेंगे। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, दो ऑलरेडी मैं लेट हो चुका हूं, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई क्वेश्चन हो तो आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चन प्लीज। Yes. Any question? क्या ज्योति मैम आपको लग रहा है कि मैं समझा पाया बच्चों को? एक समझा दो बच्चों को। मैं यही कहूंगी कि आप घबराना नहीं, बिकॉज वी आर देयर टू हेल्प यू। और ये रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे, सर्च कैसे करना है नहीं समझ में आ रहा, वी आर देयर फॉर यू। सो उसको घबराना नहीं, एंजॉय दिस लर्निंग, दिस इज ओनली आई कैन से। समझ रहे होंगे बच्चे, नहीं आएगा तो थोड़ा रिसर्च करेंगे, देन दे विल गेट टू नो। I promise बच्चा, I don't know winning losing I don't know, but you all will be learning, this is my promise. So Right. on 3rd of December you will be having another skill as compared to maybe dancing, speaking, English, Hindi, whatever you have, mathematics, physics, whatever you have learned in your life, but you will be having one more skill in you on 3rd of December. That I promise all of you. Sir, may I ask you a question? Yes, ma'am. Yes, please. Like in financial analysis, you have told us so many factors to consider. Like we have to check sales pattern, profit pattern, cash flow, operation from operations हो गया, ROCE हो गया. So is there any factor that is prominent one कि हाँ इसको देख के you can decide to invest in the company? ठीक है, आपको ठीक है, मैं समझ गया। आपको स्कूल में हेड बॉय बनाना होता है, तो आप देखते हैं बच्चा स्पीकिंग में एक्सपर्ट हो, बच्चा देखने में भी अच्छा हो, उसके पेरेंट्स भी अच्छे हो, मार्क्स में अच्छा हो, स्पोर्ट्स में अच्छा हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में हो जाए, विच इज दैट डोमिनेंट फैक्टर जिसके बेसिस पे आप कहते हैं इसको हेड बॉय बना दो। ये है तो बना दो, नहीं तो छोड़ दो। बता, उसका नाम बताइए मुझे। आप हर साल हेड बॉय बनाते हैं स्कूल में, बोलिए बोलिए। Right. Means अब एक फैक्टर नहीं है, बहुत नहीं हो सारे हैं। सकता। अगर मान लो आपने एक स्टडीज में बहुत अच्छे बच्चे को बना दिया और वो पता चलता है स्कूल ही कभी नहीं आता, वो तो एलन में बैठा रहता है रोज या फ्रिज में बैठा रहता है, तो पता चलेगा आपका स्कूल का फंक्शन है और हेड बॉय नहीं होता। ठीक है। मीन्स कोई फैक्टर नहीं है, वी हैव टू हाँ कंसीडर हाँ, फैक्टर। तो यू हैव टू कंसीडर डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स, गिव योर इंपॉर्टेंस, रीजनिंग। यू कांट से कि हाँ ये फैक्टर के बेसिस पे हम चूज करें। ठीक है, ऑलराइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बट इट वाज वेरी गुड, इट वाज वेरी गुड क्वेश्चन। Your voice is not clear, Pramila. Good Yes. evening, sir. Good evening. Sir, No, your voice is not clear. If anyone else is hearing, please let website me know. where we have to search website or paid. मुझे समझ में नहीं Pramila, किसी को repeat your because you were not audible. आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ग्रुप के स्कूल के चैट बॉक्स में लिख दीजिए, ज्योति मैम पूछ लेंगे उसको। मैं आपको बता रहा हूँ, शायद मुझे जो समझ में आया वो ये पूछना चाह रही हैं क्या स्क्रीनर के साइट फ्री है या पेड है। तो ये फ्री है। आपको जब आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन विद गूगल कर देना। लॉगिन, अपना नाम मोबाइल नंबर मत डालना आप लोग, बिकॉज बच्चे आप लोग को वहां पे जब जाओगे लॉगिन करने के लिए, लॉगिन विद गूगल, जो भी आपके लैपटॉप में गूगल खुला होगा उससे लॉगिन कर लेना। इवन ट्रेंड लाइन है, उसके बाद आपका मनी कंट्रोल है, बहुत सारी फ्री वेबसाइट है। उनका पेड का कुछ एक प्रो वर्जन होता है, वो आपको पॉपअप आएगा बार बार, गो फॉर पेड वर्जन। आप नहीं जाना, मैं तो 10 साल 15 साल से यूज कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं लिया आज तक पेड वर्जन, तो इसलिए उसमें आपको नहीं जाना। यू हैव टू यूज द फ्री वर्जन। ठीक है, इफ आई एम करेक्ट मैम, क्वेश्चन है Thank you, sir. Thank you. यही क्वेश्चन Sir, था। sir, I have a doubt. यस प्लीज। Sir, I was asking that on 3rd of December we have to show the PPT to you.
नहीं बच्चा, ऑडियंस, बहुत सारे ऑडियंस होंगे आपके स्कूल में, बहुत सारे पेरेंट्स होंगे, बहुत सारे बाहर से ऑडियंस होंगे। वहां पे आप प्रेजेंटेशन दे रहे होगे, वो लोग सामने बैठे होंगे और आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे होंगे। आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं उसमें। Okay, sir. Thank you. Sir, what is liquidity? Preparing for the skill expo, different activities students are doing. So you will be doing this activity on that day, right? अक्षित, समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट किसी ने कुछ पूछा है? Sir, what is liquidity? लिक्विडिटी, ये कहाँ से आ गया लिक्विडिटी? आप कौन सी क्लास में बच्चा, पहले बताओ। Sir, 10th. हाँ, 10th. 10th में है। लिक्विडिटी, अगर आप स्टॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हो तो वो स्टॉक जो खरीदने के बाद आसानी से बिक जाए उसे हम लिक्विड स्टॉक कहते हैं। कुछ ऐसे स्टॉक होते हैं जो खरीद लिया तो कोई उसको फिर दोबारा बेचने के लिए कोई अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एक तो लिक्विडिटी इस पॉइंट से। दूसरा लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं। आई डोंट थिंक कि आपके मन में वो क्वेश्चन आया होगा अगर आप 10th में हैं तो। ठीक है, लिक्विडिटी जैसे कोई प्रॉपर्टी आपने खरीद ली, वो बिक नहीं रही। कोई ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो, जैसे गोल्ड खरीद लिया आपने, कभी भी जाओ बेच दो, तो उसको कहते हैं हम लिक्विड एसेट है, कभी भी बेच सकते हो उसको। ठीक है, अमितेश समझ में आ गई बात आपको? Yes, sir. ओके, एनीवन एल्स? So yes, there's one question, sir. Yes. The PPT students will make, what will be the duration of the PPT? Like, वो सब आपको स्कूल से पता चल जाएगा, कितना टाइम होगा दिन भर में, कितना, वो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं मैम। वो आपको स्कूल आई थिंक गिव यू द आंसर कि हाँ कितना टाइम, पेरेंट्स कितने एक बार में कितने आते हैं, कितना एक टीम को हम दे पाएंगे। ठीक है, Right. okay, sir. Excuse me, sir. अभी तो आप लोग, अभी तो फर्स्ट थिंग है कि आप अपना रिसर्च करिए। रिसर्च को कैसे क्रिप्ट करना है, क्या करना है, वो बात की बात है। Excuse me, ठीक है, sir. यस प्लीज। Sir, how many slides the students will be preparing? ये देखो प्लीज, ये सब ना बहुत बचपने वाला क्वेश्चन होता है। No, sir. ये बहुत ही बचपन है ये। No, no, if it is, yeah, I do, it's a research, na? So हाँ, it will be आप according to the research. But आप maximum, कुछ नहीं मैम, कुछ yeah, नहीं कह सकते। मैंने कहा ना, दिस इज योर, yeah, अगर आपको सपोज 5 मिनट दिया, एक बच्चा yeah. ऐसा होता है, आई हैव सीन दैट, वो 3 स्लाइड में Okay. केवल पॉइंटर्स लिखता है और उसके बाद Mm-hmm. बोलता है, बोलता खूब है वो उन पॉइंटर्स के बेस Okay. देयर। So it depends. हाँ, दूसरा बच्चा होता है वो 25 स्लाइड में पूरा कंटेंट भरा रहता है, वो पढ़ पढ़ के बोल रहा होता है। मैंने आई हैव सीन दैट बच्चा ऑल्सो। अब वो Okay, sir. बच्चे की अपनी इंडिविजुअलिटी है, उसको आप नहीं बता सकते। आप उसको टाइम बता सकते कि यू हैव दिस टाइम लिमिट। अब मैं एक चीज बताऊंगा, हो सकता है एक बच्चा ऐसा होगा जब उसको 5 मिनट मिला और कंपनी की हिस्ट्री बताने में 5 मिनट लगा दिया, पॉइंट कट जाएंगे, बिकॉज देयर विल बी सम पॉइंट फॉर हिस्ट्री, देयर विल बी सम पॉइंट फॉर फाइनेंशियल रिसर्च, देयर विल बी सम पॉइंट फॉर टेक्निकल रिसर्च, देयर विल बी सम पॉइंट फॉर कैंडल पैटर्न, तो देयर विल बी डिफरेंट पॉइंट्स। तो आपको ये देखना कि इतने टाइम में आप क्या क्या कवर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, दैट बच्चा, Okay. वही तो So बच्चे it depends upon the एकदम, company and their research only, हाँ na? बच्चे के ऊपर है। बस उनको आप टाइम बताइए। मैंने बताया ना, बच्चों को थोड़ा सा ग्रो करने दीजिए। आप 25 स्लाइड होनी चाहिए, ये फॉन्ट होना चाहिए, ये सब मत बताइए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये बच्चे As बहुत a computer teacher, we only ये define बच्चे, them, na? मैं For आपको this नहीं much नहीं you have to ये मत do करिए। this and मैं that. आपको बता रहा हूँ, आफ्टर विजिटिंग 350-400 स्कूल्स थ्रू आउट इंडिया, अगर आप ये चीजें नहीं बताएंगे तो आपको बहुत यूनिक वर्जन्स, बहुत यूनिक एसेट्स मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। अदरवाइज फिर सब में एक मोनोटोनस आ जाएगा, सब बच्चा वही कर रहा होगा। दिस इज माई, आई डोंट नो। Definitely, sir. हाँ Yeah. बच्चे आजकल बहुत स्मार्ट हैं, हाँ, वो चीज बहुत अच्छे से जानते हैं हाउ टू प्रेजेंट दीज। मैं बता रहा हूँ, अभी मैं एक स्कूल में था, कहाँ, शायद न्यू एरा स्कूल में, वहां मैंने देखा बच्चे ने, मैंने 4 टॉपिक बताए आपको कि बच्चे ने बैकग्राउंड रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, फाइनेंशियल रिसर्च, प्राइसिंग, 4 स्लाइड बनाई हुई थी और 4 स्लाइड में थोड़ा सा डायग्राम डाल रहे थे, पाई डायग्राम, और वो सब कुछ बोल रहा था, उसने कुछ कंटेंट लिखा ही नहीं था साइड, और ही वाज एक्सलेंट इन हिज स्पीकिंग एंड कवरिंग एंड ऑल कन्विंसिंग। तो वही है कि बच्चा कैसे करता है, लेट द चाइल्ड डू इट। ठीक है, एनीथिंग एल्स? तो अगर आप लोग इजाजत दें तो मेरे एक अलग मीटिंग है, पीपल आर पुटिंग द मैसेज। So sir, tomorrow there is no meeting. We'll be Tomorrow we are meeting. not meeting. Day after tomorrow, we will talk in the daytime, and most probably day after tomorrow, because I will be there in their hostel. I have to see only the connectivity कि हाँ वहाँ पे कोई दिक्कत ना हो।
ठीक है। अदरवाइज अभी हमारे पास टाइम अगर 30th होता तो थोड़ा टेंशन होती, सिंस वी हैव थर्ड, तो हमारे पास इवन अगर मैं वहां से आ भी जाऊंगा तब भी हमारे पास टाइम होगा। इतना बच्चों को बता दीजिएगा। अच्छा, कंपनी अलॉट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बच्चों को बता देना है, गूगल पे जाके लिखेंगे NSC 500। मैं रिपीट कर रहा हूँ, NSC 500 कंपनीज। आप लोग चाहें तो सब लोग लिख सकते हैं NSE 500 कंपनीज। उसमें से कोई भी 500 कंपनियों की लिस्ट आ जाएगी आपके पास। इसमें से जो मन करे आप कंपनी ले सकते हैं। आप मैम आप देख लीजिएगा, कोशिश अगर हो सके तो ऐसा ना हो कि सारे बच्चे ऑटो कंपनी ले रहे हैं, सारे बच्चे FMCG ले रहे हैं। कोशिश करें कि एक ग्रुप ने ऑटो लिया है, दूसरे ने FMCG लिया है, तीसरे ने बैंकिंग लिया है, चौथे ने रियल एस्टेट लिया है, पांचवें ने टेक्नोलॉजी लिया, किसी ने इन्फोसिस, TCS ऐसा कोई कंपनी लिया है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनी लेंगे तो यूनिकनेस दिखेगा, अदरवाइज वो फिर वो मतलब मोनोटोनस होगा। ठीक है, बिकॉज अगर कोई एक बच्चा TCS लेगा तो वो कहीं कंपेरिजन दिखाएगा कि इन्फोसिस से, HCL से, उसकी कंपनी कैसे अच्छी है, खराब है, जो भी है। ठीक है, एक बच्चा टाटा मोटर लेगा तो मारुति से, MM से कंपेयर करके दिखाएगा। दीज आर द आइडियाज, आई शुड नॉट बी गिविंग, लेकिन मेरे को देना पड़ गया। ठीक है, और लेकिन अगर सपोज एक बच्चे ने टाटा मोटर ले लिया, दूसरे ने MMM ले लिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लिया, तो फिर वो PPTs ना वो आपस में एक जैसी दिखेंगी, वो फिर वो चीज नहीं आएगा। तो NSC 500 में से कोई भी कंपनी ले लें, कोशिश करें आप इतना अलॉट कर दें कि हाँ बेटा तुम लोग को टेक कंपनी लेनी है, तुमको ऑटो कंपनी लेनी है, तुमको FMCG कंपनी लेनी है, तुमको सीमेंट कंपनी लेनी है, तुमको स्टील कंपनी लेनी है। इस तरह से 9 ग्रुप्स में अलॉट कर सकते हैं आप। अगर आप चाहें तो मैं आपको 9 नाम लिख के दे दूंगा, आप 9 नाम उनको अलॉट कर सकते हैं, आप चाहें तो। ठीक है, श्योर थैंक यू वेरी मच। प्लीज आई हैव टू ज्वाइन अनदर मीटिंग, दे आर कॉलिंग मी। तो थैंक यू वेरी मच बच्चा। आई होप मैं आप लोग की कुछ मदद कर पाया। आई प्रॉमिस मैं आप लोगों को अच्छे स्किल दूंगा इन नेक्स्ट 3 क्लासेस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। that they will be getting certificate also for the Yeah, training. they will be getting internship certificate of 1 week because this will be 1 week activity total मिला जुला के, because आज हमने कुछ किया, कल ये कुछ करेंगे। तो they all will be getting internship certificate from Lead School Edutree for 1 week internship which they can use in their admission process in undergraduate courses and postgraduate courses. Okay. Right. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Leave now. Thank you, sir. Thank you. Thank you.